filling the gap, the bridge it is between our developer and operation team, right? So DevOps is very important. What happened then recently when machine learning and things became popular, all the companies are looking for MLOps guys. The same guys who were DevOps, now they are becoming MLOps. Recently, one of my friend joined Lloyd Bank in Hyderabad. So he has complete, he was into DevOps, then now he has to do machine learning MLOps role. He is fine tuning the LLMs and deploying those LLMs in the Docker images and Kubernetes clusters. So basic thing is like if you learn DevOps, you can support as a MLOps guy. If you learn further LLM ops, AI ops, as Roshan said, like, you will have a side course of AI which will help you. And also you have free courses, free things available like Claude, ChatGPT, which you can leverage and utilize and learn more things. Copilot is there. So we are in the era where AI is dominating. Like those who were developers, those who were able to write codes, Python codes and Java codes, those were like people used to think they know a lot of things, but at this moment AI can help you become a developer. You can write code yourself using AI's help. You can automate anything using AI. But yes, but if your fundamentals are not good, even AI can't help you, right? AI can give you codes, but you have to validate. So you have to learn basics very well, and you have to be able to, you have to be able to answer the questions and explain things to people when you are in an interview, when you are appearing for an interview. So yeah, so interviewer will ask on different topics. So Right. earlier the standard was different. Earlier interview was very easy to crack. Like people will come and ask you Docker questions. Tell me what is Docker, how will you create image, that's all. And how will you tell me architecture of Kubernetes, and few common questions which you will find in Google, and it was easy to crack the interviews. But if you have real experience, hands-on experience doing it in labs, and you understand the crux, if you understand the why we are learning and why a DevOps role is very important, why developer needs DevOps guys, why operation teams need DevOps guys. Even my managers, they are not able to find the right person for their team. Like DevOps guys are still in shortage. So that's the thing. This is very important. And also I'll share my screen first and I'll share some few things with you guys just to make you understand why it is important. So I just searched top 10 IT jobs in demand in India, right? So are you able to see my screen? Yes. Guys? So yes, based on 2026 Indian IT hiring market, demand is shifting strongly toward AI, cloud data, cybersecurity, platform engineer. So platform engineer is nothing but DevOps engineer. If many companies, what they do, they name it platform engineer. Like my neighbor is working for Walmart, so his designation is platform engineer. But he is also doing the same what a DevOps guy does. So when I discuss with him, when I go on walk with him every evening, so he tells me what he does. So I understood that kind of all these roles, platform engineer or DevOps engineer, if you see here, DevOps engineer and platform engineer is ranking seventh as of now. Last year and the day and the earlier, these skills were on top. So since AI, Gen AI, LLM, these are dominating, right? But still, DevOps demand is not less. It is still in top 10. You can see the full stack developer at one time it was in much in demand. Now it's on 10th position. But you cannot say that full stack developers demand has completely gone. It's not like that. So if you see the terms DevOps platform engineer, right? Here you need to learn Kubernetes, Terraform, CI/CD tools, and Docker, right? That's what they say. But it's very basic. But you have to learn a lot of things apart from that, because now, right now companies are not asking for only DevOps engineer, they're asking for cloud DevOps engineer. That means that person should know at least one cloud, whether it is AWS or it is Azure or it is Google Cloud, any three cloud. These three clouds are in demand. So AWS engineers are, lots of engineers are available in market, right? But Google
cloud engineers are in much demand because there are less number of engineers, and Google is aggressively growing in the market. They are giving discounted rate to the customers, so many customers are moving. Recently I got a call from Unilever, so they are planning to migrate from Azure cloud to Google cloud. So these are the things. So if you see the demand, right, LLM, RAG, LangChain, all these part of AI and LLM. If you want to go in this domain also, but again you will have to learn Python very well if you want to move into AI ML engineering. But here in DevOps, so we have Kilesh, Dilip, and Sailendra. So Dilip, would you like to introduce yourself? How many years of experience you have, and what's your current job role? Not able to hear you. Maybe you're speaking, but audio is not available. We can proceed, Chandan. Yeah, Yeah. we can proceed. Not a problem. Yeah. So as you can see, the demand, right? DevOps, what you have to learn, and again, our team has shared you the whole course curriculum, right? What all we will make you learn by doing practicals and theory. But more than theory, I believe in doing practicals. More you do it yourself, more you practice doing, and if you watch it how it happens, like initially you will have to watch how things are performed, and by watching it you have to implement the same thing in your uh, environments system where you will practice. So slowly you will gather knowledge, and then you will be able to prepare yourself for interviews when where company demands. So no matter what's your past experiences, we will help you to create your resume, which is which will attract the HR team for hiring process. So that will help you to give a boost to your career. And yeah, we all keep on learning, we all upgrade our skills. So and we should not stop ourselves, because career in IT is quite comfortable, I believe, other than other jobs, because you have to sit in front of laptop and do your job, and then you have this luxury of work from home thing. So and yeah, career growth as well. So is there any certain like expectations or like target in your career, like you want to reach to a certain package or certain salary level? Roshan already informed you, right? Based on your experience, you can demand in market like your current CTC, and on top of that, and you can switch companies as much as it is, like because based on demand, जितना demand market में रहेगा उतना आप लोग अपना resume उस हिसाब से बना के और इंटरव्यू क्रैक करके आगे बढ़ते जाओगे, और यू नीड नॉट टू स्टॉप. मेरे फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहे हैं अभी. एक फ्रेंड रकुटेन से IBM लैब्स में गया, और मूव करते रहते हैं लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. सबको पैकेज भी बढ़ाना होता है और न्यू लर्निंग भी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर नया सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर नहीं सीखेंगे तो दूसरे लोग जो सीख रहे हैं वो लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो कंपटीशन है. मे बी यू कैन से इट्स अ रैट रेस, बट या वी ऑल पार्ट ऑफ रैट रेस. वी हैव टू मूव ऑन, और हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है करियर में, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड कि IT में करियर बनाना है. अदरवाइज और भी प्रोफेशंस हो सकते थे, राइट?
बट आई बिलीव कि सबसे इजी प्रोफेशन तो मुझे बीटेक करके इन आईटी में एंटर करना ही लगता है। और जब हमें पता हो पाथ, पता हो कि कहाँ जाना है, क्या कैसे क्या सीखना है स्ट्रक्चर्ड वे में, देन वी कैन चूज टू चूज एनी रोल लाइक जेएनआई एलएलएम हो, एआईएमएल इंजीनियर का रोल हो, एमएलऑप्स हो, क्लाउड आर्किटेक्ट का रोल हो। तो ये सारे रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दीज ऑल रोल्स आर हाईली पेड. Data engineers is a very good profile. Many of my friends are working as a data engineer. Even I am working as a DevOps engineer supporting the data engineering team. So yeah, I forgot to tell कि data engineering team को भी DevOps engineer की जरूरत होती है, क्योंकि उनका data pipeline जो है वो DevOps engineer तैयार करते हैं। तो DevOps engineer कुल मिला के हर जगह फिट इन हो जाते हैं। उनकी डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो बिना DevOps engineer के data engineers को भी चैलेंज होता है। जैसे राइट नाउ मेरी कंपनी में डेटा इंजीनियर्स वो एक डेटा पाइपलाइन बना रहे हैं, तो उनको मेरी हेल्प चाहिए। वो बिग क्वेरी डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं, तो उसमें फिर उनको हेल्प चाहिए। वो पैकेजेस पाइथन वगैरह बहुत कुछ चीज़ें होती है जो डेटा इंजीनियरिंग टीम को एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप हेल्प करते हो। और अगर आप क्लाउड की नॉलेज रखते हो तो डेटा इंजीनियरिंग वालों को बहुत सारी ऐसी क्लाउड सर्विसेज हैं, जैसे कि डेटा फ्लो, एयर फ्लो, ये सारी चीज़ें उनको हेल्प चाहिए होती है डेवऑप्स इंजीनियर की कॉन्फ़िगर करने में। और डेवऑप्स इंजीनियर को अगर डेवऑप्स इंजीनियर को क्लाउड आता है तो वो क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर कहलाता है। जैसे ये क्लाउड प्लेटफॉर्म इंजीनियर है, एक वो ऐसी टीम होती है जो एक प्लेटफॉर्म देती है अदर टीम को यूज करने के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म इंजीनियर का रोल होता है कि वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उनको दे, और वो फिर उसके ऊपर बेस्ड अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, और अदर चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो these all roles like top 8 roles if you see, इसमें हर जगह डेवऑप्स इंजीनियर और प्लेटफॉर्म इंजीनियर विल फिट। और ये एमएलऑप्स भी एडवांस्ड फॉर्म है डेवऑप्स का। तो जब आप डेवऑप्स सीखोगे और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के साथ काम करते हो, जो लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको एक पाइपलाइन चाहिए होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे एंड पॉइंट पे डिप्लॉय करना है। जैसे बहुत सारी मशीन लर्निंग एप्स है, जैसे छोटे छोटे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जिनको मोबाइल पे भी आजकल डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे ओलामा हो गया, ओलामा हम अपने डेस्कटॉप पे डिप्लॉय कर सकते हैं। बट कंपनीज क्या कर रही हैं, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है उनको क्यूबरनिटीज के पॉड में पैक करके उसको क्यूबरनिटीज क्लस्टर में डिप्लॉय करते हैं, और उसको एंड पॉइंट पे यूजर्स के लिए अवेलेबल करते हैं। तो एमएलऑप्स में भी डेवऑप्स का काम लगता है। तो यही है पूरी कहानी इसकी। आपको इसमें क्या क्या सीखना है वो पता चल जाएगा धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे गूगल क्लाउड, क्यूबरनेटीज, टेराफॉर्म, डेवऑप्स, एमएलऑप्स, वर्टेक्स एआई। वर्टेक्स एआई एक टूल है जो गूगल क्लाउड ऑफर करता है। टूल नहीं है, एक सर्विसेज है जो ऑफर करती है गूगल। आप उस वर्टेक्स, अब इन्होंने नेम चेंज कर दिया, एजेंट प्लेटफॉर्म कर दिया है वर्टेक्स एआई की जगह। आप एजेंट प्लेटफॉर्म पे जाओगे और आप एलएलएम्स को ट्रेन कर सकते हो, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते हो, वैलिडेट करते हो, उसको डिप्लॉय करते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो आप एजेंट प्लेटफॉर्म पे। फिर एमएल फ्लो एक टूल होता है जिससे आप पाइपलाइन बनाते हो कि मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा, टेस्ट होगा, वैलिडेट होगा, फिर रीट्रेन होगा। ये सारा कुछ एमएल फ्लो के थ्रू होता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली एमएलऑप्स के पार्ट हैं। तो जीसीपी क्लाउड आर्किटेक्ट पाथ हो गया, एमएलऑप्स एआई प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट हो गया, जेएनएआई एलएलएम ऑप्स आर्किटेक्ट हो गया, एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया। अभी लोग क्लॉड का यूज करके, या जेमिनी का यूज करके, या चैट जीपीटी का यूज करके वो एजेंट्स बना रहे हैं, और एजेंट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं अपने अपने इन्वायरमेंट में, जो लोगों का काम आसान करती है। जैसे आप इंटीग्रेट कर लेते हो, राइट। आपके वीएस कोड में कोपायलट इंटीग्रेटेड रहता है, और आप कभी भी कोई भी कोड लिख रहे हो, प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, या कोई
डेवॉप्स की डेवॉप्स रिलेटेड कुछ क्यूबरनेटिस की YAML फाइल्स वगैरह लिख रहे हो, तो आप कोपायलट को यहाँ पे डाल लेते हो और आप कोपायलट से जो भी पूछते हो, सॉरी, I hope you guys are already using this Copilot thing, right? Any one of you? Yes, yeah. So ये जो एजेंट है, राइट, इफ यू सी, कुछ कंपनियां जो हैं जो कोपायलट एंटरप्राइज लेवल का लेके रखती हैं, तो उनके अनलिमिटेड टोकन्स रहते हैं। और प्लस अभी तो मैं साइंड इन नहीं हूँ, तो आप जो भी जैसे एजेंट से कुछ पूछते हो, एजेंट को आप बोलते हो कि मेरी ये फाइल को करेक्ट कर दो, या मेरी कोई भी YAML फाइल हो गई, जेसन फाइल हो गई, उसको आप एजेंट को बोलो, और कोई भी अगर एरर फाइंडिंग है वो आपको वो फाइंड करके कोपायलट करेक्ट करके सब कुछ करके देता है। तो लाइफ इजी हो गई है एजेंट आने की वजह से। बट अब हम लोगों को, आफ्टर लर्निंग डेवऑप्स, वी हैव टू अपग्रेड आवर सेल्व्स टू यूज these AI to make more agents, to make our life much easier. तो या पीपल आर स्केयर्ड कि AI आ गया है तो 10 लोगों का काम एक आदमी कर सकता है, राइट? तो जॉब्स जाएंगी, सब लोग ऐसे डरे हुए हैं कि AI आ गया है तो जॉब जाने वाली है। तो जो 10 लोगों का काम एक आदमी कर रहा है, बट ये चीज क्या है कि उस तरह से काम भी ज्यादा आने लग गया है। पहले क्या था, कम डेटा सेंटर्स होते थे, कम डेटा सेंटर्स थे। अभी हर कंपनी पूरा अपना पैसा डेटा सेंटर्स बनाने में लगा रही है, AI या LLM मॉडल्स बनाने में। अभी आपने रिसेंट न्यूज में सुना होगा, ओरेकल ने 35,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। रीजन वॉज कि वो अपना पूरा पैसा AI और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। निकाला है, लेकिन फिर उनको जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉयज की, और फिर वो रिहायर करेंगे सब रिसोर्सेस को। लेकिन उन लोगों को हायर करेंगे जो मल्टी स्किल्ड होंगे या जो अपग्रेडेड होंगे, जो नई नई स्किल्स सीख के आएंगे। लास्ट ईयर TCS ने भी लगभग 70,000 एम्प्लॉयज को निकाला है। तो हर कंपनी निकाल रही है, बट इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिखता है लोगों को, बट लॉन्ग टर्म क्या है कि जब आप AI सीख रहे हो, डेवऑप्स सीख रहे हो, जब आप स्लोली स्लोली ये सब चीजें कर रहे हो और आप मार्केट के पेस पे चलने लग रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली डिमांड आपकी बढ़ेगी, तो कंपनीज हायर करेंगी। ठीक है, अब पहले क्या था, जब बैंक्स में काम कंप्यूटर नहीं होते थे, तब बैंक्स में लोग मैनुअली सब कुछ करते थे, हैंड रिटन नोट्स तैयार होते थे, बही खाता जो भी बोलते हैं। लेकिन जब बैंक में लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आ गए, तो लोगों ने कहा कि तो बैंक एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर क्या हुआ, नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इंक्रीज हो गए, राइट? कितने सारे ATM खुल गए, कितने सारे बैंक्स आ गए, HDFC, ICICI, और इतने सारे ब्रांचेस, हर हर स्ट्रीट में दो दो तीन ब्रांच हो जाते हैं बैंक के। तो उतने एम्प्लॉयज की डिमांड भी बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आने से लोगों की जॉब चली गई। वैसे ही AI के केस में होने वाला है, जब AI आया है तो लोगों की जॉब जाने वाली इनिशियली लगेगी कि जॉब जा रही है, बट फिर इसी की वजह से डिमांड भी तो बढ़ेगा। तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखना है, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, और हम लोगों को अपना स्किल्स अपग्रेड करते रहना है और रेलिवेंट बने रहना है मार्केट में। ऐसा ना हो कि हम ओल्ड स्किल पे अटके रह गए और एक दिन कंपनी वाले बोले कि आप जा सकते हो। ऐसा कर रही है कंपनी, मैंने कई कंपनी में देखा। नोवो नोर्डिस्क में हुआ, अभी बैंगलोर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बताते हैं कि जॉब रिस्क पे अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो अपने आप को तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस? वन मोर थिंग, आपको मैं जरा ये दिखा दूँ, लिंक्डइन पे जॉब डिमांड्स कैसी है। अगर आप डेवऑप्स जॉब ढूंढोगे, तो जैसे सीनियर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, आप जब भी कोई करियर पाथ चूज करते हो, राइट, सबसे पहले उसकी आप देखो कि डिमांड कितनी है मार्केट में, कितने लोगों को चाहिए। सीनियर क्लाउड ऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर एट एप्पल बैंगलोर, राइट? साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डेवऑप्स। SRE, वो भी वही काम करते हैं जो डेवऑप्स करते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है उनमें। एक्सेंचर में है डेवऑप्स इंजीनियर, 2 मिनट्स अगो इन्होंने पोस्ट किया है, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर केप जेमिनी में, JCP GCP डेवऑप्स SRE क्यूबरनेटीज, राइट? एरिक्सन में है टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। और ये ऐसी फील्ड है ना कि पहले सपोज आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, कभी आपने, आपका बैकग्राउंड
कोड लिखने वाला नहीं रहा। लेकिन आप जब डेवऑप्स इंजीनियर बनते हो, ऑटोमेटिकली जब आप डेवलपर्स के कांटेक्ट में आओगे, क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर्स का काम ही है डेवलपर्स के साथ काम करना, उनकी हेल्प करना। क्योंकि वो एप्लीकेशन बनाएंगे, आप उनको डॉकर इमेज बना के दोगे, उनको पाइपलाइन क्रिएट करके दोगे उनके लिए। तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग भी सीख जाओगे। तो अगर आप देखो तो कितने सारे जॉब ओपनिंग्स हैं, और आप जब भी किसी जॉब ओपनिंग को देखो, जैसे यहाँ पे आप देखो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया लीड इंजीनियर डेवऑप्स, राइट। इसमें मेरा एक फ्रेंड जॉब करता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, बैंगलोर में ही। तो अगर आप इन इस प्रोफाइल को, इस जॉब प्रोफाइल को देखोगे, क्या क्या डिमांड है इनकी, क्या चाहते हैं ये, आपको क्या आना चाहिए इस रोल में फिट होने के लिए। नेटवर्किंग एंड लिनक्स, माइक्रो सर्विसेज, कीबाना ELK, ये मॉनिटरिंग का टूल है। अज्योर डेवऑप्स, डेवऑप्स टूल फॉर प्रोसेसिंग, गिटहब, डॉकर, क्यूबरनेटीज क्लस्टर, CI/CD, हेल्म, ये चीजें हैं जो उनको रिक्वायर्ड हैं। सो बहुत चीजें कॉमन मिलेंगी आपको, जैसे ये ADO, अज्योर डेवऑप्स, राइट। और क्लस्टर, क्यूबरनेटीज क्लस्टर तो हर जगह कॉमन होगा। मेरा मानना है कि अगर मार्केट में आपको क्यूबरनेटीज आता है, टेराफॉर्म आता है, डॉकर आता है, दैट्स ऑल, यू कैन गेट अ जॉब इजीली इन डेवऑप्स। बट अगर क्लाउड सीख लिया तो इट्स आइसिंग ऑन द केक। फिर आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, आप क्लाउड आर्किटेक्ट के रोल में भी जा सकते हो, आप डेवऑप्स के रोल में भी रह सकते हो, आप SRE के रोल में भी जा सकते हो। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस गेट्स ओपन वंस यू यू नो एंटर इनटू डेवऑप्स रोल। तो आप खुद में भी सर्च करना अपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, यू विल फाइंड कि डेवऑप्स का क्या डिमांड है और क्यों आपको सीख लेना जरूरी है जितनी जल्दी हो सके, सो दैट यू कैन मूव टू अ नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, राइट। So that's all from my end. Any questions or queries you guys have? Roshan, are you there? Hello. Am I audible to you guys? Can you hear me? Yes, yes, you are audible. So Roshan, anything to discuss further, or it was just a demo discussion, right? Yes, Chandan. So if you can quickly cover the course curriculum, what all things we are going to cover. That's Okay, all. yeah, yeah, sure. So let me open up this. So okay. So what all we will learn here, right? First of all, let's start with. See, you guys are familiar with Linux. It's very important, right? But yeah, many knows it, and if you don't know it, not much big deal, you can learn it quickly in some time, not a big deal. And it is basic actually. You start any work, you need to have Linux, because most of the applications are deployed on Linux, right? So Linux आना तो kind of must है, और बेसिक लिनक्स आना भी चलेगा। लाइक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से हम फेमिलियर होते हैं, राइट। फिर कुछ लोग एप्पल का मैक ओएस यूज करते हैं, तो वो मैक ओएस से फेमिलियर होते हैं। बट अगर आप विंडोज से मैक ओएस में जाते हो तो यू फेस सम चैलेंजेस, राइट, कि ये ओएस थोड़ा डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट। तो उसी तरह से आप जब विंडोज से लिनक्स में जाते हो, राइट, इट्स कम्प्लीटली कमांड लाइन। आप विंडोज में क्या करते हो, क्लिक करते हो, यहाँ से वहाँ मूव करते हो, जो भी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्लिक 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 नेक्स्ट, एंड सॉफ्टवेयर गेट्स इंस्टॉल्ड। सिमिलरली लिनक्स में और भी इजी है, एक कमांड रन करो और सॉफ्टवेयर गेट्स इंस्टॉल्ड। बट या देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू लर्न इन लिनक्स, एंड इफ यू लर्न रेड हैट रेड हैट लिनक्स स्पेशली, तो बहुत अच्छा रहेगा। रेड हैट लिनक्स, ये फर्स्ट थिंग हो गया। अच्छा, अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो जानते हो, लेकिन अब आपको, आप कोड्स लिखते हो, राइट। आप कोड लिखोगे कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, राइट, क्योंकि आप टीम में काम करोगे तो टीम के साथ शेयर करना पड़ेगा कोड। तो गिटहब इज द मोस्ट कॉमन वन।
वैसे मार्केट में और भी हैं, गिटलैब है, बिट बकेट है। तो ये 3 बहुत पॉपुलर हैं। प्लस फिर क्लाउड वाले देते हैं आपको, जैसे गूगल क्लाउड में क्लाउड रिपोजिटरी करके सेम गिटहब की तरह आपको प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें हो गई। थर्ड आपको सीखना है डॉकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉकर जानते हो, फिर आप क्यूबरनेटीज सीखने जब जाओगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा डॉकर सीखने के बाद, राइट। उसके बाद आपको सीखना है टेराफॉर्म, विच इज़ वेरी मच इन डिमांड। प्लस इसके साथ एनसिबल सीख लिया तो और भी इजी हो जाएगी लाइफ। अब टेराफॉर्म तो आईएसी टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, राइट। और ये कॉन्फ़िगरेशन टूल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है टेराफॉर्म और एनसिबल। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत लोग, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट इन दोनों के कंपैरिजन में बाकी चीज़ें सब फेल हैं। जैसे टेराफॉर्म की जगह पुलुमी है मार्केट में अवेलेबल, बट नॉट मच इन डिमांड। फिर आपका AWS देता है अपना खुद का क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। गूगल खुद का देता है डिप्लॉयमेंट मैनेजर, बट सब फिर भी टेराफॉर्म ही यूज़ करते हैं, क्योंकि टेराफॉर्म क्लाउड एग्नोस्टिक है, तो वो किसी भी क्लाउड के लिए एप्लीकेबल है। आपने एक क्लाउड पे अप्लाई किया, बाकी के क्लाउड आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो जैसे मैं गूगल क्लाउड पे काम करता हूँ, तो मेरे जितने भी गूगल क्लाउड से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग है, मैं टेराफॉर्म से करता हूँ। बट इट्स नॉट लाइक कि मैं, अगर मुझे AWS में टेराफॉर्म यूज़ करना होगा तो मैं नहीं कर सकता। आई कैन डू दैट एज वेल। क्यों? क्योंकि एक बार टेराफॉर्म आपने सीख लिया तो किसी भी क्लाउड पे आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपको क्लाउड तो सीखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेराफॉर्म सीखा है तो उसको अप्लाई तो करना है कहीं ना कहीं, राइट। तो कोई भी क्लाउड आप सीख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। GCP हो गया, अज्योर, AWS, राइट। क्लाउड सीखने के बाद अब आपको कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि लेट मी चेक क्या क्या है। हाँ, मॉनिटरिंग टूल, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, राइट, तो मॉनिटरिंग टूल सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी SRE की रोल में डिमांड करते हैं लोग। उसके लिए आपको मोस्ट फेमस इन मार्केट इज प्रोमीथियस प्लस ग्राफाना। इन सबसे पहले आई थिंक ये 8 नंबर पे आएगा, मे बी इसको लास्ट नंबर ही देंगे। और 7 पे आएगा आपका CI/CD, पाइपलाइन बनाना, राइट। को पाइपलाइन बनाना आना चाहिए, और पाइपलाइन बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, लेकिन मोस्ट पॉपुलर इज जेनकिंस, राइट, गिटहब एक्शंस, और गिटहब एक्शंस एंड अज्योर डेवॉप्स और क्लाउड रिलेटेड डेवॉप्स पाइपलाइंस। बट आई थिंक जेनकिंस इज इनफ। अगर आप एक जेनकिन सीख लेते हो या फिर गिटहब एक्शन सीख लेते हो, अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर गिटहब एक्शंस होता जा रहा है। बहुत कंपनीज जेनकिन से मूव करके गिटहब एक्शंस पे जा रही है। मेरे एक फ्रेंड की कंपनी में गिटलैब भी है। गिटलैब पाइपलाइन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप पाइपलाइन डेवलप कर सकते हो। और बट ये दो चीज़ें जो हैं, राइट, ये डॉकर, क्यूबरनेटीज
और ये टेराफॉर्म एंसिबल, ये तीन चीज़ें जो है मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती हैं, राइट। गिट और लिनक्स आप सीख सकते हो खुद से भी, इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बट या वी विल कवर एवरीथिंग इन कोर्स। और ये मॉनिटरिंग पार्ट जो है वो बेसिकली उनके लिए होता है जो एसआरई रोल में है, जिनको जैसे आपने कहा प्रोडक्शन सपोर्ट में, जैसे जिन लोगों को एप्लीकेशन मॉनिटरिंग में रहना है कि कल को डाउन हो गया तो प्रोमीथियस एंड ग्राफाना कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, सो दैट कि यू नो P1 इश्यूज हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग तो रिक्वायर्ड है, बिना मॉनिटरिंग के तो इन्वायरमेंट स्टेबल रहेगा नहीं, राइट। तो मॉनिटरिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बट अगर ये चीज़ें सीख लेते हैं ना, डॉकर, क्यूबरनेटिस, CI/CD पाइपलाइन और टेराफॉर्म, ये हमें इंटरव्यू रेडी करने के लिए इनफ है। इन इन चीज़ों को सीखने के बाद आप इंटरव्यू फेस करना शुरू कर सकते हो। इनिशियली फेलियर्स होंगे, बट डोंट वरी, क्योंकि हर इंटरव्यू में आपको नई लर्निंग मिलेगी, क्योंकि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा और जब आप इंटरव्यू में अपीयर होगे तो आप ऑलरेडी थोड़े से नर्वस हो गए, राइट, इंटरव्यू ड्यूरेशन में। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑन द स्पॉट, सम थिंग्स यू विल बी एबल टू आंसर, फ्यू थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। जब आप नहीं बोल पाओगे, राइट, नहीं आंसर कर पाओगे, तब आप और पढ़ोगे और डिटेल में डीप में जाओगे उन टॉपिक्स को क्लियर करने में। तो यह इट विल बी अ इंटरेस्टिंग जर्नी जब आप ये सब कुछ सीख के जब पहली बार इंटरव्यू फेस करोगे एंड आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे हमारी टीम के साथ, हम लोगों के साथ, कि कैसा रहा इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। एंड वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर योर सपोर्ट, राइट, क्योंकि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी करियर चेंज में आपकी हेल्प करें हम। तो या एंड और भी चीज़ें होंगी ऑन द वे, ऑन द गो वी विल डिस्कस, क्योंकि डेवऑप्स एक्चुअली बहुत वास्ट है। अगर आप देखो तो एंड टू एंड है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने चैट जीपीटी भी दिखाया, हर जगह डेवऑप्स इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। तो आप देखो तो हर जगह डेवऑप्स में इतनी चीज़ें हैं, धीरे धीरे एआई भी घुसने लग गया अभी। हम अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्लॉड यूज़ करते हैं, कोपायलट यूज़ करते हैं to streamline things, to resolve complicated issues. And with the help of these AIs, I can see, freshers. Last year एक लड़का हैदराबाद में हमारी टीम में ज्वाइन किया. He is a fresher, but he is doing amazing job with the help of AI. So that was not possible earlier. कि जब AI नहीं था तब वो सब पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब है। आज की डेट में आप AI की हेल्प से कर सकते हो, या बट आपको हैंड होल्डिंग लगेगी इनिशियली, और जब आप सब चीज़ें सीख लोगे तो उसके बाद फिर आप खुद में कैपेबल हो जाओगे एआई का यूज़ करके उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में। या सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। दिस इज जस्ट अ जिस्ट कि क्या क्या हम सीखेंगे, राइट। और धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स ऐड भी होते जाएंगे, क्योंकि हमें मार्केट से रेलिवेंट रहना है, क्योंकि हो सकता है कल को जब हम ये सीख रहे हो जेनकिंस गिटहब एक्शंस, तब तक मार्केट में कोई और ऐसा टूल आ जाए कि उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो भी चीज़ें साथ साथ सीखते चलेंगे, राइट। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लिनक्स से स्टार्ट करते हैं, राइट, सेशन। उसके बाद हम गिटहब पे जाएंगे, फिर डॉकर, क्यूबरनेटीज। और ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो लिनक्स से तो लिनक्स को पहले स्किप करके लास्ट के लिए रख लेते हैं और गिटहब से शुरू करते हैं, सो दैट वी विल बी इन द राइट सीक्वेंस। रोशन, हाँ चंदन, या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, सो व्हाट एल्स यू वांट मी टू डिस्कस? no, that's all, Chandan. You have mostly covered all the topics. So I would like to thank all the
candidate who want to enroll for this course, okay, feel free to reach out to us. Okay, any Hmm. kind of questions if you have already in your mind, we will try to overcome all of your queries. Okay. uh, yeah. और हाय चंदन, Yeah. एक्चुअली मुझे पूछना था सेल स्क्रिप्टिंग रिक्वायर्ड है और के बेसिक बस चलेगा? It's okay. देखो, दो ऑप्शंस है, या तो आप सेल स्क्रिप्टिंग कर लो या पाइथन स्क्रिप्टिंग कर लो। कुछ कंपनीज बोलेगी दोनों आए तो बहुत अच्छा है, कुछ कंपनीज बोलेंगी, मतलब आना तो उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है कि अगर कैंडिडेट को सेल स्क्रिप्टिंग भी आती है और पाइथन स्क्रिप्टिंग। अब जैसे मैं कहाँ यूज करता हूँ सेल स्क्रिप्टिंग, जैसे सपोज हम पाइपलाइन बना रहे हैं जेनकिंस की, राइट? तो ईच ईच स्टेजेस में हम सेल स्क्रिप्ट को कॉल करते हैं, और पाइपलाइन में वो सेल स्क्रिप्ट कॉल होता है और वो काम कर देता है। अब क्या होता है, सेल स्क्रिप्ट पहले लोग जो लिनक्स में बहुत एक्सपर्ट होते थे वही लिख पाते थे सेल स्क्रिप्ट। आज से 10 साल पहले जब मेरे फ्रेंड्स सेल स्क्रिप्ट लिखते थे तभी मुझे सेल स्क्रिप्टिंग नहीं आती थी। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगता था वाह, इनको सेल स्क्रिप्टिंग आती है। या जिनको पाइथन स्क्रिप्टिंग डॉट पी वाई फाइल बनाते थे और ऑटोमेट कर देते थे चीज़ों को, तो मुझे लगता था ये पाइथन लिखना तो बहुत डिफिकल्ट है। बट अब जब चैट जीपीटी को पायलट की दुनिया है, तो इस दुनिया में सेल स्क्रिप्टिंग सीखना इज लाइक केक वॉक। मैं दिखाऊंगा कैसे सेल स्क्रिप्ट को पायलट लिख के देता है। कुछ भी आप ऑटोमेट करना चाहते हो, आप सेल स्क्रिप्ट को बोलो। नहीं नहीं, वो तो कोपायलट से भी यूज कर रहा हूँ मैं हाँ। ऑफिस में, वो डे टू डे हम्म। एक्टिविटी। हम्म। बट मैं तो जस्ट रिक्वायरमेंट पूछ रहा था कि डेवऑप्स इंजीनियर एज अ पार्ट ये अपना सेल स्क्रिप्टिंग एक्चुअली मैंडेटरी? मैंडेटरी कुछ हाँ मांगती हैं कंपनियां, लेकिन आपको बोल दोगे ना कि मुझे सेल स्क्रिप्ट आता है, ठीक है, तो उससे ओके। बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे वो कि आप क्या क्या करते हो ऑटोमेशन में, क्या यूज करते हो सेल स्क्रिप्टिंग, राइट? जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भी यही पूछता हूँ कि आप सेल स्क्रिप्ट कहाँ यूज करते हो। वैसे क्या होता है, इंटरव्यू ड्यूरेशन 30 मिनट्स से 45 मिनट्स का जाता है, राइट? तो उसमें ना इंटरव्यूअर आपके हर टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा, उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आप क्यूबरनेटीज में एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो क्या, क्यूबरनेटीज कैसे मैनेज करते हो, क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हो, ये सब चीजों में घुसते हैं। वो क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या होता है, सेल स्क्रिप्ट साइड में चला जाता है। बहुत टाइम बच गया उनके पास तो सेल स्क्रिप्ट पे आते हैं वो। और सेल स्क्रिप्ट में बहुत कॉमन चीजें हैं जो सीखनी है, जैसे कि आपको एसीडी कमांड हो गई, ऑक कमांड हो गई, ये सारी चीजें सीख लो और बेसिक सेल स्क्रिप्ट लिखना सीख लो। बस उतना चाहिए उनको। आपको समझ में आना चाहिए, आप सेल स्क्रिप्ट देखो और बता सको कि ये क्या लिखा है। ओके। हम्म। सब समझ में आ गया। और वो एक्चुअली लिनक्स का ही पार्ट है, एक तरह से देखा जाए तो जो सेल स्क्रिप्टिंग है, बैश स्क्रिप्टिंग, वो लिनक्स ओएस के साथ में आता है। जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर चुके हैं उनके लिए सेल सेल स्क्रिप्ट लिखना इज लाइक लेफ्ट हैंड जॉब। एक्चुअली मेरा अभी करंट वर्क मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है मुझे ज्यादा सेल लिनक्स स्क्रिप्टिंग। और अच्छा। स्क्रिप्टिंग बिकॉज ओके। ऑफ आई एम हैंडलिंग देयर ओरेकल एप्लीकेशन, ईपीएस अच्छा। एप्लीकेशन। तो यहाँ हाँ। तो मोस्टली एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल पे ही बस वर्क था। ओके। तो मुझे अभी ये ओरेकल डीबी वगैरह और लिनक्स पे ज्यादा वर्क नहीं है हैंड्स ऑन। ओके। 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 तो एक काम करते हैं, पहले तो अगर आपको लिनक्स और सेल स्क्रिप्टिंग ही सीखना है, राइट, तो पहला हम वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल। अगर आप लिनक्स सीख लिए तो उसके बाद फिर बाकी चीजें बहुत इजी लगने लगेगी, क्योंकि कमांड है, राइट? कमांड्स आप एग्जीक्यूट करना सीख जाते हो और ओएस से रिलेटेबल है, राइट? विंडोज से आप अगर रिलेट कर करके लिनक्स सीखोगे तो और इजी होगा, क्योंकि हम विंडोज सब बचपन से फेमिलियर होते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब लिनक्स सीखते हैं तो हम उसको एक दूसरे से रिलेट करके सीखेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। और स्क्रिप्ट क्या है, सिंपली आप जैसे विंडोज में भी हम पावर सेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइट? जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है ना, पावर सेल, विंडोज पावर सेल। तो पावर सेल स्क्रिप्ट भी लिखी जाती हैं। जो विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको पावर सेल स्क्रिप्ट लिखना होता है और वो रन करते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक मेरे फ्रेंड को हेल्प किया पावर सेल स्क्रिप्ट लिखने में। मैंने आज तक लाइफ में कभी पावर सेल स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, बट उसके काम को ऑटोमेट करना था, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ एआई पावर सेल स्क्रिप्ट लिख के उसका सारा काम ऑटोमेट किया। तो सिमिलर बैश स्क्रिप्टिंग भी है। अगर आपको बैश स्क्रिप्टिंग चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको ऑटोमेट क्या करना है, सिंपली।
और आप स्क्रिप्ट लिखोगे सिंपली। सिबैंग से स्टार्ट होता है, बिन बैश। और उसके बाद आप जो भी कमांड्स रन करना चाहते हो, इमेजिन कि आप एक गूगल क्लाउड इमेज बनाना चाहते हो, राइट? तो गूगल क्लाउड इमेज बनाने में आपको सेल स्क्रिप्ट लिखोगे, डॉट एस एच फाइल लिख दोगे, उसमें गूगल की सारी कमांड्स लिख दोगे, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट को रन करोगे आप, गूगल की सारी कमांड्स रन होंगी और आप जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो वो स्क्रिप्ट आपकी कर देगी। कोई भी काम आप ऑटोमेट कर सकते हो। मैंने रिसेंटली शेयर मार्केट ट्रेडिंग को ऑटोमेट करने की कोशिश की, पाइथन यूज करके। जैसे आप लोग में से पता नहीं कोई शेयर मार्केट करता हो ना करता हो, तो आप चाहो तो पाइथन स्क्रिप्ट लिख के आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो, और आपका ऑर्डर प्लेस होगा अपने आप एग्जिट होगा, सब कुछ स्क्रिप्ट के थ्रू होगा। तो ये सब चीजें हैं जो मार्केट में बहुत डिमांड में है, इसलिए लोग पूछते हैं सेल स्क्रिप्टिंग आता है, पाइथन आता है आपको, इसी चीजें हैं। बट हाँ, इसकी वजह से कुछ काम रुकता नहीं है अभी, और मतलब बाकी आपको जो सीखने की जरूरत है वो है क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, एंसिबल, डॉकर, ये सब चीजें। क्योंकि बेसिकली आप अगर आईटी में हो और आपको एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, कि जब डेवलपर आपका कोड डेवलप करके आपको दे रहा है, तो उसके बाद क्या करोगे आप? क्योंकि डेवलपर को तो सब कुछ नहीं आता। कुछ डेवलपर्स हैं जिनको डेवऑप्स का भी काम आता है, बट कुछ डेवलपर्स होते हैं जो कम्प्लीटली डेवऑप्स इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आप ही के भरोसे हैं वो, आप हो तो आगे काम होगा। तो चंदन, इसमें ये AWX करके एक मेरा टूल है, वो भी ऑटोमेशन टूल ही है, ए लाइक डब्ल्यू डिप्लॉय। एक्स AWS ओके। आर्टिफैक्ट जे फैक्ट्री में है। ओके। उसमें भी जो पहले मैं डिप्लॉयमेंट करता था वो एज अ जो भी प्रोसीजर पैकेज या कुछ भी कंपाइल करना मैन्युअली कर देता था। ओके। अभी डेवलपर मुझे जैसे कोई पैकेज कंपाइल भी कंपाइल करना है, तो हम्म। वो सिर्फ अपना कोड देता है, तो उसका एक कोड बना देते हैं, मतलब एसक्यूएल का कोड बना देता हूँ हम्म। वो लाइन पर। हम्म। और वो वहाँ पे मैं फाइल्स अपनी अपलोड कर देता हूँ आर्टिफैक्ट देख सकते हैं। ओके। और AWS से रन करते हैं तो ऑटोमेटिक मतलब इमेज बन डिप्लॉय जाए। ओके। होता है मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे आप बोल रहे हो जे फ्रॉग यूज करते हो आप। है। यस सर। जे फ्रॉग जैसे आपका सोना टाइप नेक्सस है, वैसे जे फ्रॉग रिपोजिटरी होती है, जहाँ पर आप हम्म, अपने बिल्ड इमेजेस को रख सकते हो। फिर जैसे yes, गूगल प्रोवाइड करता है आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, वहाँ पे आप डॉकर इमेज हो गए, या पाइथन के पैकेजेस हो गए, या नोट जेएस के एप्लीकेशन के पैकेजेस हो गए, वो सब वहाँ पे रख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट रेपोजिटरी है जो हम लोग ड्यूरिंग सी आई सी डी सीखेंगे। सी आई सी डी में क्या होगा, एंड टू एंड सीखेंगे हम लोग। मतलब एक डेवलपर ने कोड लिखा, उस कोड को हमने कंपाइल किया, कोड को कंपाइल करके उसको डॉकर इमेज बनाया, डॉकर इमेज बना के हमने उसको क्यूबरनेटिस क्लस्टर में डिप्लॉय किया। फिर क्यूबरनेटिस क्लस्टर में जब डिप्लॉय हुआ तो वो पहले डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जाएगा, फिर प्रोडक्शन में जाएगा, फिर उसको यूज करना शुरू करेंगे एप्लीकेशंस को। तो ये एंड टू एंड पूरा सी आई सी डी में हम समझेंगे। तो आपको ऑटोमेशन समझ में आएगा कि कैसे फुल्ली ऑटोमेटेड पाइपलाइन है। मतलब आप सिर्फ एक पाइपलाइन ट्रिगर करोगे और रिलैक्स बैठ जाओगे। एक बार पाइपलाइन आपने कंप्लीट सेटअप कर दिया, और जब आपकी पाइपलाइन में कुछ फेलियर्स आने लगे तब आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल्सो अ डेवऑप्स इंजीनियर्स जॉब। तो बेसिकली आप अभी ऑटोमेशंस पे काम कर रहे हो, राइट? एप्लीकेशन टीम्स के लिए। हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट 3 to 4 months ही हुआ है ओके। ओके। यहाँ बैंक में स्टार्ट हुआ है जस्ट ऑटोमेशन। तो कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हो आप? बताया AWS शायद डायरेक्ट आपने। AWX। एक्स। ओके। और AWX के पहले आई थिंक एनसिबल आया था, लेकिन वो शायद तो बैंक ने बंद किया है अभी। ओके। तो उन्हें ये अपना एनसिबल एनसिबल जैसे और भी टूल्स हैं, पपेट है, सेफ है, लेकिन उतने ज़्यादा डिमांड में नहीं है जितना एनसिबल है। मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एनसिबल यूज़ करते हैं, एनसिबल टावर यूज़ करते हैं। एनसिबल टावर एक्चुअली रेड हैट पेड है। वो क्या होता है, यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे आप एनसिबल के प्लेबुक लिखते हो, तो वो एनसिबल टावर वो आपके लिए काम करता है, वो सारा कुछ। तो वो हम लोग यूज करते हैं। फिर और भी बहुत सारे मार्केट में टूल हैं, जैसे सीक्रेट मैनेजर होते हैं, राइट? सीक्रेट्स कहाँ स्टोर करते हैं, एप्लीकेशन के सीक्रेट्स और वो सब। तो बहुत लोग हैसिकॉप वॉल्ट यूज करते हैं, हैसिकॉप
जैसे अपना टेराफॉर्म भी हैसिकॉप का प्रोडक्ट है। हैसिकॉप एक कंपनी है जिसके बहुत सारे टूल्स हैं। टेराफॉर्म क्लाउड प्रोवाइड करता है हैसिकॉप। तो फिर बाद में उसको आईबीएम ने एक्वायर कर लिया हैसिकॉप को, तो अभी सारे टूल्स आईबीएम के हो गए हैं। तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा सीखने जाओगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ऐसा होता है, इंटरव्यू में जाओगे कि अरे यार इस इंटरव्यू में तो इसने ये पूछ दिया, सेफ पूछ दिया, इस इंटरव्यू में उसने पपेट पूछ दिया। तो आप क्लियरली अपना रेज्यूमे बनाओगे कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, और वही चीज़ें डालोगे आप रेज्यूमे में जो मार्केट में डिमांड है। अगर आपने ज़्यादा टूल्स डाल दिए कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, फिर क्या होगा? फिर इंटरव्यू बोलेगा इसको सब कुछ आता है, और जब आंसर अप नहीं कर पाओगे ना उस क्वेश्चन में, तब उनको लगेगा कि इसने रेज्यूमे में अननेसेसरी डाला है, जो भी डाला है। तो इसलिए आपको रिज्यूमे बहुत कंसाइज बनाना है, और ज़रूरत नहीं है कि एक इंसान को हर कुछ आना चाहिए। मेरा जो फ्रेंड है उसको क्लाउड भी नहीं आता, उसने सिर्फ लिनक्स डाला है, डॉकर, क्यूबरनेटीज और फ्यू थिंग्स डाले हैं, और उसको कॉल्स आती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की। मैंने पूछा ऐसे कैसे, तुमने तो ये सब डाला नहीं, फिर कैसे? उसको टेराफॉर्म भी नहीं आता है, फिर भी उसकी आज की उसका पैकेज 52 lakhs का है। तो मतलब पॉसिबल है, आप कम चीज़ें डालो। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, हर कुछ सीखना है। बट फिर समझ आया कि वही चीज़ें सीखो जो डिमांड में है मार्केट में। क्योंकि अपना एनर्जी हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, राइट, कोई आप एक टूल सीखने जाते हो, फिर आप नई टूल सीखने जाते हो। जैसे मैंने बोला जेनकिंस है, गिटहब एक्शंस है, कितना टूल सीखोगे आप, राइट? तो टूल्स सीखते चले जाओगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बर्ड्स आई व्यू मतलब आपको हाइट से देखना है। 35,000 फीट से अब जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, राइट, तो आपको सब कुछ क्लियर क्लियर दिखता है। तो अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हो, सपोज आपकी खुद की कंपनी है, आप अपनी कंपनी में कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, आपने डेवलपर्स की टीम लाई, टेस्टर की टीम लेके आए, बाकी टीम भी ले आए, डेवऑप्स की टीम भी ले आए। अब आपकी डिमांड है कि आपके टीम वाले क्या करें, डेवलपर क्या करेगा, कैसे एप्लीकेशन डेवलप करेगा, उसको डेवऑप्स कैसे हेल्प करेगा। तो आप जब हाइट से देखते हो चीज़ों को, बर्ड आई व्यू, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे हम एक टीम के पार्ट है, सपोज मैं डेवऑप्स टीम का पार्ट हूँ। अब मुझे पता नहीं कि डेटा इंजीनियरिंग क्या करने वाली है, या मशीन लर्निंग टीम क्या करने वाली है, या डेटा एनालिटिक्स टीम क्या करने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, राइट? तो हम क्या होता है कि सब कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन हम अपना कोर तो समझ सकते हैं, राइट, कि हम कर रहे हैं। अभी अभी आप जिस पर्टिकुलर रोल में कर रहे हो, आपको अपना रोल पता है। बट अगर आपके पास व्यूज मतलब क्लियर व्यू हो कि अदर टीम्स क्या कर रही है, आप जिन टीम्स के साथ काम करते हो वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए तो थोड़ा और इजी हो जाता है। बट हाँ, इसके लिए इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप डेवलपर के साथ काम कर रहे हो तो आपको डेवलपमेंट भी आना चाहिए, नॉट नेसेसरी। जो फुल स्टैक डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, वो अपना काम करेंगे, डेटा इंजीनियर्स अपना काम करेंगे। आपका अपना रोल है। आप उस तरह हो जैसे जो हर चीज में फिट फिट हो जाता है, राइट, कि सब्जी में भी जाता है, दाल में भी जाता है, ऐसी चीज आप हो। तो जैसे नमक होता है और हर जगह उसकी जरूरत होती है, तो वैसे ही डेवऑप्स इंजीनियर है। अगर आप एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हो अपना डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो आप एमएलओप्स इंजीनियर के रोल में जा सकते हो, क्लाउड आर्किटेक्ट के रोल में जा सकते हो। अगर क्लाउड में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप क्लाउड की सारी सर्विसेज को गो थ्रू कर लेते हो, इन एंड आउट, तो आप एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हो। ओके अखिलेश, वी आर वाइंडिंग अप नाउ, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉप इफ यू वांट। Okay, thank you, Chandan. या Thank you, everyone. Bye. Thank you, Chandan. हाय, थैंक यू Thank एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। you.